हेलो। अब क्लास 10th की एग्जामिनेशंस बहुत नियर है और हम लोग आज इसी के साथ रिवाइज करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि कंटिन्यूअसली वो क्वेश्चन आ रहा है एंड दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू चैप्टर सर्कल और सर्कल का ये क्वेश्चन नंबर है 12। आपको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे उसी से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने स्टडी प्रॉपरली स्टार्ट कर दी होगी उन लोगों को तो पता ही होगा कि दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट किसी भी चीज़ से को रटना नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को फाइंड करना है साइड ए बी और ए सी। दिस इज योर ए बी साइड एंड दिस इज योर ए सी साइड। नाउ आपके पास एक थ्योरम होती है दैट सर्कल एंड देयर इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, और यहाँ से अगर हम दो टेंजेंट पास आउट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं पी ए बी, तो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल थ्रू द टेंजेंट इट इज ऑलवेज इक्वल द डिस्टेंस ऑफ ए पी एंड ए बी। ये जो डिस्टेंस है सपोज इसकी एक्स है तो यहाँ की भी डिस्टेंस क्या होगी एक्स। सेम टू सेम वी विल अप्लाई हियर। अगर मुझे यहाँ पर ये अप्लाई करना है तो दिस बी ए और सी दैट इज द एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। दिस इज योर 6, so that this is also 6 centimeter. Same to same, this is 8. Everyone know that this is also 8. But here it is unknown. Unknown, so you can choose any variable. You decide your variable. I will take it here x. So this is my x. They are given A, B, C, D. Now I will write here E, and this is my F point. And this is the point of the contact where the perpendicular lines are meet. तो यहाँ पर साइड निकालनी है तो ये साइड गिवन है, ये दोनों साइड आपको निकालनी है। तब हम एरिया किससे निकाल सकते हैं? क्या आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? जो लोग बोल रहे हैं हेरॉन्स लगा के, इट्स वेरी गुड। हेरॉन्स ही लगेगा जब आपको 3 साइड गिवन होती है और आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। अब आप बोलेंगे इसमें तो तीनों साइड गिवन नहीं है, तो वही देखते हैं कि हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ अब आपके पास यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कि मेरा ए जो है वो 14 सेंटीमीटर है बिकॉज 6 + 8 दैट इज योर 14। बी इज योर x + 8 and C is your x + 6. This is my 3 side. According to the Heron's, S equal to A plus B plus C upon 2. Now, what is A? 14. B is x + 8. C is x + 6 upon 2. Now, that 14 + 8 + 16, that is your 28. And x plus x, they are like variables, so that is your 2x upon 2. Now what is the common between this? All of you here it is 2, so when we have to take the common 2, now then after that this 2 and 2 is cancelled. First we will take the variable because we write simply and then we will do it through. So that is your x, and that how many times? That is your 14 upon 2 because you have to apply the distributive property, then that is your 2x and that is your 2 14 is 28 again. These 2 and 2 is cancelled. Now what is your semi perimeter? That is your 14 plus x centimeter. According to the Heron's, the area is under root s minus a, s minus b and s minus c under root s. What is your s? S is your x plus 14. Then again s plus 14 minus a. What is the a here? A is 14, so you can write it 14. Again under bracket s, x plus 14, and then here it is b. The value of b is x plus 8, but when you have to take it bracket and the opposite negative sign is out of the bracket, then all the signs are changed. But why they are changed? Because minus x plus 8 whenever you have to write plus minus minus x, and again minus plus minus 8. So this is we will write it
x minus 8. Are you understand this? S again, S value is x plus 14 and minus C. Again you have to change, because here it is also minus sign. Whenever the minus sign in the out of the bracket, all the signs are changed. Those who are negative, positive, जो positive वो negative. Now that is your minus x minus 6. Now we will solve this. This is your positive and negative, plus and minus is cancelled. Under root again. This is your 1x is left. This is x plus 14. Now this x and x, positive negative again cancel. That 14 minus x. How many 14 minus x? Then 14 minus 8. 14 minus 8, it is your 6. And that is 14 minus 6, 8. Then the next process is your distributive. First we will run and find out some side. Okay. Now then here it is. Again we will write it under root. This is your x as it is. X plus 14 is as it is. And do it prime factorization of the 6. That is your 2 multiplied by 3, because 2 3 just 6. And that is your 8. Then you can write 2 into 2 into 2. Why we will write this? Because 2 2 ja 4, 4 2 ja 8. Now everyone know that when the square root is there, you are making the 2 pairs, and those who are in paired, आप उनको easily क्या कर सकते हो? बाहर कर सकते हो. तो 1 2 और 1 2, 2 and 2 is out of the under root, and what is the left here? This is gone, only 3 x plus 14, and this is your 2 2 ja 4. This is your 3x plus 14. This is my first part is completed. The area of triangle ABC. बट अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भी कोई आंसर तो नहीं मिल रहा. देन हम क्या करेंगे? अगेन हम लोग देखेंगे कि अब हम लोगों के पास यहाँ से बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर OB को ज्वाइन कर दिया, OC को ज्वाइन कर दिया, देन A को ज्वाइन कर दिया. अब आपके पास यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको. दिस इज माय फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज माय सेकंड ट्राइंगल, दिस इज माय थर्ड ट्राइंगल. एंड इन द क्वेश्चन दे आर गिवन कि O to D इज योर 4 सेंटीमीटर. तो O to D इज 4. इट मीन्स ये सर्कल की क्या हो गई? रेडियस हो गई. और अगर ये सर्कल की रेडियस है तो O से F की वैल्यू और O से E की वैल्यू भी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर होगी. अब आपके पास यहाँ पर आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं. देखिए ध्यान से. OBC, दैट इज माय फर्स्ट ट्राइंगल. देन OCA, दिस इज माय सेकेंड ट्राइंगल. एंड OAOB, दिस इज माय थर्ड ट्राइंगल. जब मैं इन ट्राइंगल्स को ऐड कर दूंगी, इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दूंगी, तब आपको क्या मिलेगा? बड़ा वाले ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, ट्राइंगल ABC. तो अब मैंने वही करना है. ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस area of triangle OAC plus area of triangle AOB. अब आपके पास वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो अब हमारे पास हम लोग लेंगे सबसे पहले ये वाला. तो 1/2, इट्स बेस. Base is your 6 plus 8, that is your 14 centimeter, and 1/2 base multiplied by height. Height is your 4 centimeter. Then next about this one. This is your 1/2. Its base is x plus 8, and its height is again 4. Plus again the third area, 1/2. Its base is x plus 6, and its height is 4. Now then do it in simplest form. Here
This is your 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 14 2 ja 28, 2 1 ja 2 2 ja, that is your 2x plus 8, 2 1 ja 2 2 ja, that is your 2x plus 6. We'll take a distributive property here. 2 multiplied by x, that is your 2x. 2 8 16, 2 8 ja 2 multiplied by x, and that is your 2 6 ja 12. Now what is the constant term? This is your constant, this is your constant, this is your constant. And what is the variable? This and these are variable. So that is 2x plus 2x, that is your 4x, plus 28 plus 16 plus 12. How many that is? This is the 56. Now what is the common between this? 4 is common. So we will take it common. X plus 4 1 ja 4, 4 4 ja 16. And this is the area of triangle A, B and C. This is my equation number 2. Now look at the equation number first, that is area of triangle ABC is this, and that is also area of triangle is this. अब हम क्या करेंगे, ये वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल में से यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू यहाँ पर जाकर पुट कर देंगे. बीच का मैं अभी रब कर देती हूँ बिकॉज मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर दी है. हाँ, ट्रायंगल ABC, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 4x plus 14 and this is your 4 into 3x x plus 14. This 4 and 4 is cancel. Now only this much is the left. Now take a distributive property here. Sorry, it is under. So squaring on both side when you are square, because आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट को क्या करना है, रिमूव करना है. स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर इज 1/2. और अगर किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की पावर 1/2 है और अगर आपको इसको कैंसिल करना होगा तो आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. बिकॉज 2 और 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पर भी इसकी पावर क्या है, 1/2. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ दैट इज x plus 14 और इसका स्क्वायर करने पर ये इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर आ गया और इसको हटा देंगे तो ये केवल स्क्वायर रूट हट के केवल इतना मिलेगा. अब आपके पास ये जो स्क्वायर रूट से एक वाला तो कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 2 था, 2 से 1 कैंसिल हो गया, x plus 14 एंड 3x बचा हुआ है आपके पास. अगर यहाँ पर इस x की वैल्यू को हम उधर लेके जाते हैं तो आपके पास न्यू स्टेप में क्या हो गया कि 14 इक्वल टू 3x माइनस x, दैट इज योर 2x इक्वल टू 14. So x equal to 14 divided by 2, that is your 7. So what is the value of x? X is 7. अब जैसे ही आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया बिकॉज आपको फाइंड करना था AB प्लस AC. तो आपके पास AB में क्या था, AB में क्या था, AB आपकी जो थी आप देखिए A to B, दैट इज योर x प्लस 6. तो x प्लस 6 इट मीन्स 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर. एंड आपको AC फाइंड करना था. AC क्या था, x प्लस 8, दैट वैल्यू ऑफ x इज 7. 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर. तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का आता है. अगर आपको हमारे साथ रिवाइज करना है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है और आप वो करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.